Assalamu alaikum, students. So we were discussing the bipolar transistor as an amplifier circuit, and we would continue with the same theme, that is how we can utilize the transistor in an appropriate circuit to be utilized as an amplifier. These are the contents which we will discuss in today's lecture, and of course you would realize that I have included the first point as a common emitter biasing of the transistor in common emitter configuration, because you would recall from your previous discussions of the transistor that when we bias the transistor in the common emitter configuration, we get a large gain in the output circuit with a very small input current in the form of IB, and hence for the amplifier designs we normally use the common emitter configuration with various variation in the biasing circuits. So that's why I'm going to discuss the common emitter configuration once again, but maybe not in such a detail. Then we would like to highlight again the concept of the transistor as an amplifier and define the gain in a different manner, the voltage gain as well as the current gain that you obtain across the load in the output circuit. And then we would discuss, having discussed these are termed, the common emitter configuration is sometimes referred to as a large signal amplifier. Then we would discuss the small signal operation, and finally we would like to give you the equivalent circuits for the amplifier designs. So as is the norm in my lectures, that I give you 3 or 4 references in each lecture, so that you don't have to go back and see where the lecture was taken from. So these are the typical 3 or 4 textbooks that I have been referring to, but my today's lecture has been prepared exclusively from this reference, so I have devoted a whole slide. So slide 4 is the reference from which today's lecture has been designed. Once again, we start with the introduction, and in the introduction I would like to reiterate once again what are the salient features or highlight of a transistor when it is biased in a common emitter configuration. Now, we had been discussing this this circuit, that is the common emitter configuration, extensively, because this is the basis, this type of biasing forms the basis what is termed as the amplification circuit of a bipolar junction transistor. And then we superimpose on a DC signal a small AC signal, and to remind you once again that the transistor collector characteristics are utilized only in the linear region. What do we mean by the linear region? That is, the Q point that we select should be halfway or midway between on the load line, so that when there are slight fluctuations in the Q point due to various reasons that we had been discussing all along on the subject, one of the most important variation in the Q point is due to the temperature variation, and temperature variation causes changes in the beta, and beta therefore would affect your Q point. So we have to restrict our Q point, that is the operation of the transistor as an amplifier should be restricted only in that region of the collector characteristic curves which are flat or termed as linear region of the curves, and thereby the amplifier itself is known as linear amplifier region or linear operation of the transistor. The basis for the amplification amplifier circuit is the fact that when the bipolar junction transistor is operated in the active mode, it acts as the voltage controlled current source. Changes in the base current voltage VBE give rise to changes in the collector current IC. This point is the same which I have rewritten in a slightly different manner. What does this explain? That as always, the basic principle of a transistor operation is that your emitter base junction should be forward biased, and we forward bias the junction input loop, that is
with a voltage source designated as VBE. So VBE, that is the input voltage, forward bias voltage in the input circuit, controls your base current IB, and with a slight change in VBE or with a slight change in the base current IB, we can draw a large amount of current IC across the load, and that is the basic, simple basic principle of the transistor amplification circuit. Thus, in the active mode, the bipolar junction transistor can be used to implement a transconductor amplifier. So, changes in VBE, जैसा कि मैंने अभी explain किया कि IB इनपुट करंट से आप एक कलेक्टर करंट IC रिसीव करते हैं, और IB इनपुट करंट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बाय चेंजेस इन द इनपुट वोल्टेज VBE. तो VBE से इन अदर वर्ड्स आप कंट्रोल कर रहे हैं आउटपुट करंट IC, एंड दैट लेटर ऑन इन ए मिनट आई विल शो यू अ स्लाइड कि ट्रांस कंडक्टेंस को हम इन्हीं दो पैरामीटर की रेशियो से एक्सप्रेस करते हैं. तो ये तो ट्रांजिस्टर का बेसिक डेफिनेशन है कि एम्पलीफायर सर्किट्स किस तरह आप डिज़ाइन करते हैं सिंपल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से. तो once these basics are understood, we can define an amplifier. We can superimpose an AC signal on top of the DC base value. DC base value जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हम एम्पलीफायर सर्किट्स में हम DC वोल्टेज को किस लिए लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि इट इज़ दिस वेरी DC बेस वोल्टेज जो कि आपके इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बाइस किए हुए हैं और आपके आउटपुट सर्किट को रिवर्स बाइस किए हुए हैं. तो DC वोल्टेज तो आपने रखनी है ताकि at all times you can feed an input current IB in the base in the emitter base junction and hence draw a continuous collector current IC. अब जब आप उसके ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं AC सिग्नल, तो AC सिग्नल से अब जो आपकी आउटपुट मिलेगी वो एक सिंपल रेप्लिका होगी इनपुट AC सिग्नल का, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि सिंपल एम्पलीफायर सर्किट्स में वो सिग्नल आपका एम्पलीफायर हो जाएगा और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा. तो इन पॉइंट 2 में मैं ये कह रही हूँ कि हम फिर उसके बाद AC सिग्नल वाले सर्किट को, वो सर्किट जो कि एक सिंपल बेसिक एम्पलीफायर सर्किट कहलाता है जिसमें आपकी दो बाइसेस हैं, एक तो DC बाइस फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग द इमिटर बेस जंक्शन और दूसरी आपकी AC सिग्नल जो कि एज एन एम्पलीफायर सर्किट को कन्वर्ट कर रहा है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर सर्किट में कन्वर्ट कर रहा है. नाउ द रिक्वायरमेंट इज दैट दिस AC सिग्नल शुड बी smaller than your initial DC base bias. वो इसलिए कि आपका जब नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव पीक में आपका इनपुट सिग्नल जाए तो वो फिर भी स्मॉलर होना चाहिए कंपेयर टू योर DC बेस, ताकि आपका ट्रांजिस्टर हर वक्त एट ऑल टाइम्स शुड बी फॉरवर्ड बाइस्ड. फिर हम इस AC सिग्नल को के हवाले से एम्पलीफायर्स के इक्विवेलेंट सर्किट्स डिस्कस करेंगे और एक दो मैं ट्रांसपेरेंसी स्लाइड्स आपको दिखाऊंगी जहां इक्विवेलेंट AC सर्किट की डिज़ाइनिंग दिखाई है, और उसके बाद हम उनकी कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स भी दिखाएंगे AC इक्विवेलेंट सर्किट की, एंड देन वी वुड आल्सो डिस्कस सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट्स, क्योंकि बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि ये लिमिटेशन आपके डायोड्स में भी उसी तरह वैलिड है और यहाँ ट्रांजिस्टर में भी उसी तरह वैलिड है. ये लिमिटेशंस क्या होती हैं कि आपको मालूम है कि पावर इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द total current I and the voltage V in a given loop. तो आउटपुट लूप में जो टोटल करंट IC है और आउटपुट लूप में जो टोटल वोल्टेज आपको मिल रही है डायोड के अक्रॉस VCE, इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन करता है द पावर डिसिपेशन इन द आउटपुट सर्किट. तो अगर आप पावर को किसी तरह अगर आपने IB बढ़ा दी इनपुट सर्किट में तो नेचुरली IC भी आपकी बढ़ जाएगी फॉर दैट पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू ऑफ IB. तो अगर ट्रांजिस्टर इतनी उसकी डिसिपेशन पावर नहीं है आउटपुट सर्किट में तो देयर इज़ अ ग्रेटर चांस, यानी लाइक्लीहुड ये है कि आप
you may end up destroying the transistor. तो हमें उस ऑपरेशन लिमिट में रहना है जिसको मैंने लिखा है limitations of a simple equivalent circuit, कि आपको पावर डिसिपेशन को उस लिमिट्स में रखनी है जो ट्रांजिस्टर की डेटा शीट्स पे दी हुई है। अभी 1 मिनट में मैं आपको उसकी भी स्लाइड्स दिखाऊंगी कि हाउ वी कैन represent the power and how we can manipulate the total power dissipation by controlling the two parameters, that is IC and VCE. तो अब हम सबसे पहले दोबारा एज अ समरी डिस्कस कर लेते हैं दी लार्ज सिग्नल, जिसको कई टेक्स्ट बुक्स में लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर सर्किट भी का लेबल भी दिया जाता है। वो हैं आपकी कॉमन इमिटर एम्पलीफायर बाइसिंग टू बी फॉर द सर्किट टू बी यूटिलाइज्ड एज एन एम्पलीफायर, यानी एम्पलीफायर्स ट्रांजिस्टर्स को नॉर्मल जेनेरिक ट्रांजिस्टर्स को आप कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बायस करें, उसके ऊपर सुपर इम्पोज करें डीसी के ऊपर एक स्मॉल एसी सिग्नल, और वो फिर आपका सिंपल एम्पलीफायर सर्किट कहलाएगा। तो ये वो सर्किट है जिसकी मैंने अभी बात की। तो आप देखिए कि अब मैंने बेस के ऊपर एक रेजिस्टर लगाया हुआ है आरबी। दिस रेजिस्टर हेल्प्स यू टू कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेस करंट आईबी, ताकि आप ज़्यादा पावर डिसिपेशन आपकी आउटपुट सर्किट में ना हो। सो दिस बेस रेजिस्टर आईबी plays a significant role in controlling the base current IB. अब आप साथ में ये भी देख रहे हैं कि ब्लू सर्कल में अब मैंने एसी सिग्नल जो मैंने सुपर इम्पोज किया है डीसी वीबीबी बेस वोल्टेज के साथ। तो नाउ इन एन एम्पलीफायर सर्किट यू सी टू बायसेस, द डीसी कंपोनेंट वीबी एंड द एसी कंपोनेंट शोन हियर। तो एन टाइप आपका बेस है। ये ट्रांजिस्टर अगेन मैंने एनपीएन की एग्जांपल ली है, क्योंकि नॉर्मली मैं अपने लेक्चर्स में एनपीएन की एग्जांपल्स लेती रही हूँ, एंड मोस्टली कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस पर्टिकुलर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर सर्किट highlights two simple points, that is we have selected an NPN transistor indicated by the arrowhead, and the transistor has been biased in the common emitter configuration. चूँकि ये एक एम्पलीफायर सर्किट है, तो फिर डीसी और एसी दोनों वोल्टेजेस भी आपको इनपुट सर्किट में बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। अब आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखिए, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको इनपुट सिग्नल दिखाया है। द स्ट्रेट लाइन शोज यू द डीसी अमाउंट दैट biases the input, that forward biases the input circuit, which is designated as VBB. तो इसको हमने एक और लेबल दे दिया V input. So V input now is a total voltage जो कि आपके बेस को मिल रही है। टोटल वोल्टेज में अगेन जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, दो कंपोनेंट्स है, द डीसी वोल्टेज VBB एंड द एसी सिग्नल, जिसकी पीक वैल्यू हम किसी न्यूमेरिकल एग्जांपल में चूज़ भी कर सकते हैं। वंस अगेन यू अप्रिशिएट कि जो ब्लू आपका एसी सिग्नल है उसकी पीक वोल्टेज कम है बनिस्बत स्टैंडिंग डीसी बायस वोल्टेज के। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल में, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आपका एसी सिग्नल जा रहा है, तो आपका बेस फिर भी पॉजिटिवली बायस्ड है, ताकि आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर जो आपको मिडल में नज़र आ रहा है वो एट ऑल टाइम्स फॉरवर्ड बायस ही रहे। अब आप कंसंट्रेट कीजिए ऑन दी राइट हैंड साइड ऑफ दिस स्लाइड नंबर 8, और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ मैंने अगेन फिर आपको आउटपुट वोल्टेज की एम्पलीट्यूड दिखाया है। VCC इज़ दी स्टैंडिंग डीसी बायस, जिससे कि आप ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहे हैं। सो VCC इज़ द रिवर्स बायस्ड DC वोल्टेज, RC इज़ द लोड क्रॉस द कलेक्टर, और इस लोड के अक्रॉस हमने अपना आउटपुट सिग्नल मेजर किया है जो आपको ब्लू सिग्नल में नज़र आ रहा है। नाउ यू वुड अप्रिशिएट अगर आप दोनों का रिलेटिव एम्पलीट्यूड कंपेयर करें इनपुट का और आउटपुट का, तो आपको डेफिनेटली एम्पलीफिकेशन भी नज़र आ रही है, और दूसरी चीज़ क्या नज़र आ रही है, फेज डिफरेंस। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में, जो कि इंट्रोडक्शन था टू द एम्पलीफायर सर्किट्स, ट्रांजिस्टर टू बी यूज्ड एज एम्पलीफायर सर्किट, आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि न सिर्फ एम्पलीफिकेशन हो रही है, बल्कि
आपका फेज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। तो वही 2 पॉइंट मैंने दोबारा हाईलाइट किए हैं। इनफैक्ट ये ट्रांसपेरेंसी अ काइंड ऑफ डुप्लीकेशन है, जो यही ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिखाई थी, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिप्रोड्यूस इट हियर वंस अगेन ताकि हमारी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। तो टू इलिस्ट्रेट वंस अगेन, आपकी एम्प्लीफिकेशन जो आपको नज़र आ रही है आउटपुट सिग्नल में, the amplitude consists of 2 parts again, the VCC जो आपकी DC voltage है, and the superimposed on that is the AC signal। तो आपका total output signal जो आपको RC लोड के अक्रॉस आप मेजर कर रहे हैं, ऑसिलोस्कोप पर देख रहे हैं, वो अब DC superimposed by AC signal है। तो आपकी जो वेव फॉर्म है, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड वेव फॉर्म, आपकी वेव फॉर्म आउटपुट में ट्रू रेप्लिका है आपकी इनपुट वेव फॉर्म का। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें 2 चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। एक तो ये कि आपका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, यानी ट्रांजिस्टर इज बिहेविंग एज एन एम्पलीफायर, सो यू डू सी एन एम्पलीफिकेशन। और दूसरा क्या है कि 180 डिग्री फेज है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। फेज क्यों चेंज हो रहा है, 180 डिग्री फेज चेंज की क्या वजह है, ये हम अपने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। चलें एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ फॉर द सेक ऑफ रिविजन, ताकि हमें कंटिन्यूटी रहे हमारे लेक्चर में और हम आगे चल सकें। तो वो फेज इसलिए होता है कि देखिए, जैसे जैसे आपके इनपुट सिग्नल की वेव फॉर्म इंक्रीज हो रही है, यानी वोल्टेज जब आपकी एसी सिग्नल आपका पीक की तरफ जा रहा है, तो आपके इनपुट सर्किट की रेजिस्टेंस कम हो रही है, क्योंकि इट इज़ फॉरवर्ड बायस एंड द करंट इज़ फ्लोइंग। तो आपके IB के बढ़ने से फिर आपका IC भी नेचुरली बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा यही बेसिक ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन है कि जब फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन कंडक्ट करता है तो रिवर्स बायस जंक्शन जो कि आउटपुट जंक्शन है, उसमें भी आपको करंट मिल रही है, क्योंकि ये करंट आपके इमीटर बेस जंक्शन से जाके बेस में से गुजर के आपको कलेक्टर पे मिल रही है। तो कलेक्टर करंट इंक्रीज कर रही है, लिहाजा आपकी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड RC आपका कम हो रहा है, और आपको इसीलिए VC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी इमिटर कलेक्टर डायोड, जो कि मैंने राइट हैंड साइड पे प्लॉट किया हुआ है सिग्नल, वो आपको कम मिल रहा है। तो वो इस तरह आपका कम होने की वजह से वो आपकी वोल्टेज, जैसे जैसे इनपुट सिग्नल की वोल्टेज बढ़ रही है, AC सिग्नल की वोल्टेज बढ़ रही है, आपका आउटपुट कम हो रहा है। जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल, इनपुट आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में जाता है, तो फिर आपके इनपुट रेजिस्टेंस कम हो रही है डायोड की, आपकी कम करंट वोल्टेज ड्रॉप होगा लोड के अक्रॉस आउटपुट सर्किट में, और ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप आपको VC यानी कलेक्टर इमिटर डायोड के अक्रॉस हो जाएगा। तो फिर आपके आउटपुट सिग्नल में पॉजिटिव वोल्टेज आपको मिलेगा। तो ये सिंपल रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है फेज डिफरेंस का। तो फिर 2 चीज़ें हमने डिस्टिंग्विश की, एक तो आपको हाई वोल्टेज एंड हाई करंट गेन मिल रहा है एम्पलीफायर, इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर सर्किट में, और दूसरा आपको 180 डिग्री फेज, आपको डिस्टिंक्ट फेज डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, ये देखिए, ये मैंने आपके लिए रिप्रोड्यूस किए हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स यहाँ। तो मिनिमम बेस करंट मैंने 200 माइक्रो एम्प से शुरू की है, और 3 डिफरेंट आर्बिट्ररी वैल्यूज़ मैंने इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए चूज़ की हैं, जो कि 200, 300 एंड 400 माइक्रो एम्प है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग फिर मुझे कलेक्टर करंट 20, 30 एंड 40 मिल रही है। तो आप देखिए कि मेरा IM, जो मैंने शुरू में एक कंडीशन लगाई थी कि हमने एम्पलीफायर सर्किट को कहाँ ऑपरेट कराना है, हमने एक्टिव रीजन ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कर्व्स में Q पॉइंट को हमने सिर्फ और सिर्फ लीनियर रीजन या एक्टिव रीजन में चूज़ करना है। तो ये 2 पॉइंट मैंने अगेन हाईलाइट कर दिए कि हमने ट्रांजिस्टर को का जो Q पॉइंट सेलेक्ट करना है, या हमने ट्रांजिस्टर को वो वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट सर्किट की चूज़ करनी है कि जिसमें एम्पलीफायर सर्किट लीनियर एम्पलीफायर के तौर पे बिहेव करे। तो वी हैव टू ऑपरेट इन द एक्टिव रीजन, और एक्टिव रीजन इज़ बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, और पॉइंट A और B के दरमियान भी मैंने मिड पॉइंट Q चूज़ किया। सो Q इज़ द योर वर्किंग पॉइंट फॉर एन लीनियर एम्पलीफायर सर्किट।
दूसरा मैंने पॉइंट क्या हाईलाइट किया है कि ये जो क्यू पॉइंट मैंने चूज किया है ये आपके करंट गेन एज वेल एज वोल्टेज गेन के तौर पे दिस वैल्यू वुड enhance your current as well as your voltage in the output circuit. Hence, by selecting an appropriate Q point from the by drawing the load line on the output characteristic curves, you can choose Q point and to repeat once again. Q point आपको क्या देता है? ये 3 वर्किंग पैरामीटर्स देता है ट्रांजिस्टर के, नेमली IB, आपको IB भी नजर आ रही है, IC आपको IC भी नजर आ रही है, एंड VCE. तो ये तीनों पैरामीटर हम चूज कर लेते हैं फ्रॉम द लोड बाय ड्राइंग द लोड लाइन ऑन टॉप ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स. तो अब ये देखिए आपको बेस करंट हमने जो अप्रोप्रिएट क्यू पॉइंट के लिए जो इस फिगर से, इस स्लाइड से जो बन रही है वो 300 माइक्रो एम है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग IC जो करंट है, कलेक्टर करंट जो है वो हमारी 30 मिली एम बन रही है, और VCE इसी तरह मिड पॉइंट VCE है. अब आप देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट कर्व की वेव फॉर्म्स भी इस सर्किट में. तो ये वेव फॉर्म जो है ये आर्बिट्ररी ड्रॉ की हुई हैं, क्योंकि इनपुट का आपका सिग्नल बहुत कम होगा और अकॉर्डिंगली एम्पलीफाई होकर आपको आउटपुट करंट लोड के अक्रॉस मिल जाएगी. तो ये आप देख रहे हैं कि बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B आपकी स्विंग कर रहा है इनपुट, स्विंग कर रहा है आउटपुट सिग्नल, एंड इट इज़ अनडिस्टॉर्टेड येट एम्पलीफाइड सिग्नल. अगर Q स्विंग कर जाएगा बियॉन्ड पॉइंट A, अगर पॉइंट A के बाद बाहर चला जाए तो हम सेचुरेशन रीजन में होंगे, तो आपका अपर पोर्शन क्लिप हो जाएगा, जो कि इस स्लाइड में आप क्लियरली जिसको देख सकते हैं. और अगर Q पॉइंट आपका B के नीचे स्विंग कर जाए तो हम कट ऑफ रीजन में होंगे, फिर आपका लोअर पोर्शन क्लिप हो जाएगा. तो इस तरह आपको अनडिस्टॉर्टेड वेव फॉर्म मिलेगी. लेकिन इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अगर Q को मैं लोड लाइन के इन बिटवीन, जिसे हम मिड पॉइंट Q वैल्यू कहते हैं, जो कि A और B के एग्जैक्टली हाफ में है, तो वहाँ अगर हम रख के ऑपरेट करें, अगर हम Q पॉइंट को इन द मिडल ऑफ द लोड लाइन चूज करें, तो आपका सिग्नल अनडिस्टॉर्टेड मिलेगा, जैसा कि आप इस ट्रांसपेरेंसी में देख सकते हैं. तो point A corresponds to the positive peak and point B corresponds to the negative peak, and आपकी इस तरह undistorted आपको मिल रहा है सिग्नल. अब कट ऑफ रीजन में क्या होता है कि कट ऑफ रीजन में हमारी ऑल करंट्स आर 0 और VCE कट ऑफ रीजन इज एट द बॉटम. तो कट ऑफ रीजन में चूंकि IB 0 हो जाता है, तो IB जब 0 हो तो फिर आपकी IC भी 0 है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि तमाम करंट्स आपकी 0 हो जाती हैं, और आपकी टोटल बायस VCC जो है उसका सारा ड्रॉप जो है वो अक्रॉस दी आउटपुट सर्किट में लोड के अक्रॉस हो जाता है. सैचुरेशन रीजन जो कि टॉप पे है, पॉइंट A के बियॉन्ड है, वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ IB इज बिग इनफ to produce a maximum collector current, जिसको हम कहते हैं IC saturation, और IC saturation maximum बीटा को correspond करती है. और saturation current और IB max में क्या relation है, we already know that IC is equal to beta IB. तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के हम आउटपुट लूप में ये टोटल वोल्टेजेस भी निकाल सकते हैं. VCC मैंने इस मुनासबत से लिखा कि चूंकि हमारी नेगेटिव बायस लग रही है आउटपुट सर्किट में, क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर को रिवर्स बायस करने हैं. तो VCE सैचुरेशन जो है वो बहुत इज वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू टेंथ्स ऑफ वोल्ट्स. सो IC सैचुरेशन यानी आप IC सैचुरेशन को निकाल सकते हैं. आप पॉइंट नंबर 2 को देखिए सैचुरेशन में, कि जब आपको IB पता हो, जहाँ जाके आपका ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में स्विंग कर जाए, यानी टॉप वाली पीक आपकी क्लिप हो जाए, तो हम IC निकाल सकते हैं. तो IB अगर आपको पता है उसको बीटा से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास IC सैचुरेशन निकल आई. जब IC सैचुरेशन निकल आई तो नीचे बॉटम, बिल्कुल एक्सट्रीम बॉटम स्लाइड में आप देखिए, तो VCC की वैल्यू हमें मालूम है, क्योंकि आपने खुद ही तो बायस सर्किट में कनेक्ट की है. RC आपको पता है, तो इस तरह आप IC
और VCC IC की मदद से VCC निकाल सकते हैं और VCC से फिर आप VCE सैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं वंस यू नो हाउ टू एनालाइज द DC पैरामीटर्स ऑफ अ गिवन एम्पलीफायर सर्किट। तो हाईलाइट को अब हम स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में लेक्चर के बताया कि अब तक हम विद इन कोड सो कॉल्ड लार्ज सिग्नल ऑपरेशन की बातें कर रहे थे कि जब आप प्योर सिंपल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर रहे थे। अब स्मॉल AC सिग्नल से क्या मुराद है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज बायस्ड एट इट्स क्यू पॉइंट। इट डजंट मैटर कि आपका DC बायस कितना है, लेकिन अब आपने सुपर DC बायस आपने ऑफ कोर्स इस पॉइंट ये सोच के ज़हन में रखना है कि हमने Q वैल्यू। सो DC बायसिंग इज नाउ रिलेटेड टू इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज Q वैल्यूज कि आपका लीनियर रीजन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट करे। And a small voltage signal VI is superimposed on the DC bias voltage VBE. The resulting output signal VO appears superimposed on the DC collector voltage VCE. तो आपने देखा कि जब हम दोनों वोल्टेजेस कनेक्ट करते हैं इनपुट सिग्नल में, द DC बेस वोल्टेज VBE जो कि मैंने कैपिटल लेटर से डेजिग्नेट की है और स्मॉल इटैलिक्स लेटर से मैंने AC सिग्नल दिखाया है, तो सुपरइम्पोज होकर जो टोटल सिग्नल VO मिलेगा that is a numerical sum of the DC bias component plus the small AC component। और इन दोनों की जब आप रेशो लेंगे VO over VI तो आप डिफाइन कर सकते हैं एक एम्पलीफिकेशन गेन फैक्टर। अब मैं आपको ये ट्रांजिस्टर ये सिंपल सर्किट दिखा रही हूँ। ये गौर से देखिए पिछली हेडिंग के स्मॉल AC सिग्नल ऑपरेशन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। वो इस तरह कि अब आपके पास सर्किट में दो बायसिंग कंपोनेंट्स हैं। मैं दोबारा अगली स्लाइड पे जाती हूँ। ये देखिए, आप एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड की स्लाइड को देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको VBE दी कैपिटल लेटर से हम अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि चूंकि अब बैक वक्त हम इनपुट सिग्नल में दो सोर्सेज वोल्टेज के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो DC वोल्टेजेस हैं उनके लिए हमने एक नॉमेनक्लेचर या सिंबल इस्तेमाल किया था कैपिटल लेटर्स का, जिसको अपर केस भी मैंने अपने लेक्चर्स में लिखा था। और जो इनपुट AC सिग्नल्स हैं, स्मॉल AC सिग्नल हमने चूज़ करने हैं ताकि आपका ट्रांजिस्टर सर्किट आपका फॉरवर्ड बाइस्ड रहे। तो उसको हम इटैलिक्स एंड स्मॉल लेटर्स यानी लोअर केस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही दोनों डिस्टिंक्शंस मैंने रिटेन रखी हैं। तो अब आप लेट्स कंसंट्रेट on the left hand side of the circuit। ये वही typical आपका जेनेरिक ट्रांजिस्टर है कि NPN ट्रांजिस्टर हमने चूज़ किया हुआ है। अगेन टू हाईलाइट के NPN कैसे हमें पता चला, तो अब तक आपको बहुत अच्छी तरह पता चल गया होगा क्योंकि अब हम काफ़ी आगे जा चुके हैं इस कोर्स में कि एरोहेड आपका direction of the arrowhead indicates whether it is an NPN transistor or PNP transistor। तो arrowhead की direction आपकी downward है, that is from base to emitter, तो ये obviously NPN transistor है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे तमाम लेक्चर में जहाँ तक मैंने कोशिश की है, मैंने NPN ट्रांजिस्टर को ही एग्जाम्पल्स के तौर पे चूज़ किया है। जहाँ मैंने नहीं चूज़ किया या PNP ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए हैं, वहाँ मैं डिलिब्रेट एफर्ट करती हूँ कि लिख दूँ कि ये NPN ट्रांजिस्टर है या PNP ट्रांजिस्टर है। सो दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, दिस पर्टिकुलर स्लाइड has taken an NPN transistor to be utilized as a bipolar junction transistor, operating as an amplifier in the amplifier circuit। तो दो बाइसेस हो गई, NPN ट्रांजिस्टर हो गया, द यूजुअल रेजिस्टर्स एंड द यूजुअल करंट सिंबल्स आपको सब नज़र आ रहे हैं। अब आप राइट हैंड साइड पे आइए। तो राइट हैंड साइड पे मैं आपको क्या कह रही हूँ कि मैंने जो AC सिग्नल है और साथ में मैंने वर्ड सिग्नल, स्मॉल सिग्नल बार बार मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि लार्ज सिग्नल ऑपरेशन और स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन को हमने डिस्टिंग्विश किया हुआ है। तो स्मॉल सिग्नल AC सोर्स जो है VBE, उसको मैंने डिसकनेक्ट करके ये सर्किट दिखाया है और इस वक्त हम सिर्फ प्योर DC बायस एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ राइट हैंड साइड में ओनली
VBE has been shown. और साथ ही मैंने लेफ्ट साइड पे जो सिग्नल देखें तो टोटल आउटपुट वोल्टेज की मैंने बात की थी, तो आपको नज़र आ रहा है सर्किट में कि टोटल आउटपुट वोल्टेज VO इज़ द सेम थिंग एज टोटल आउटपुट करंट बिटवीन द आउटपुट डायोड आउटपुट लूप में विच इज़ VCE, और ये न्यूमेरिकल सम है क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप आपका दो जगह हो रहा है, लोड रजिस्टर RC के अक्रॉस और VCE द डायोड वोल्टेज के अक्रॉस। तो टोटल आउटपुट वोल्टेज को आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मदद से लिख सकते हैं, जो मैंने स्लाइड के जो मैंने सर्किट के नीचे लिखा हुआ है। तो ये आपका एक सिंपल बेसिक स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन ट्रांजिस्टर का दिखाया हुआ है कि जिसमें मैंने दोनों बायसेंसेस को पहले शो किया और उसके बाद मैंने इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ DC बायस शो की हुई है। अब मैं एम्पलीफायर आउटपुट वोल्टेज गेन V0, जैसे मैंने शुरू में बताया कि VO आउटपुट वोल्टेज, AC आउटपुट वोल्टेज, टोटल AC आउटपुट वोल्टेज या टोटल सिग्नल जो है वो बायस प्लस AC सिग्नल दोनों है, एंड आउटपुट करंट IC, इन दोनों के रिलेशन मैंने आउटपुट लूप में दोनों के रिलेशन आपको लिख दिए हैं। दीज आर द सिंपल किरचॉफ वोल्टेज रिलेशंस। अब आप गौर से देखिए नंबर कलेक्टर करंट की तरफ देखें कि ट्रांजिस्टर जब ना भी बायस किया हुआ हो, अगर अनबायस्ड ट्रांजिस्टर आप लें, अगर आपको अपना PN जंक्शन या डायोड की अंडरस्टैंडिंग है तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि किसी भी डायोड में, अब चूंकि हम ट्रांजिस्टर का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ बैक टू बैक दो आपको डायोड नज़र आ रहे हैं। हम ट्रांजिस्टर को अगर दो बैक टू बैक डायोड्स के तौर पे तस्वर करें तो इमिटर बेस डायोड में और बेस कलेक्टर डायोड में, दोनों में जब अनबायस्ड डायोड्स हों तब भी कैरियर की ट्रांसपोर्ट जारी होती है, कैरियर मोशन जारी होती है, और ये कैरियर मोशन डिफ्यूजन की वजह से है, मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन की वजह से है। लेकिन अनबायस्ड डायोड्स में ये डिफ्यूजन आपकी एक डिप्लीशन रीजन की वजह से, बिल्ट इन पोटेंशियल की वजह से, जंक्शन बिल्ट इन पोटेंशियल की वजह से डिफ्यूजन आपकी नेग्लिजिबल हो जाती है। लेकिन माइनॉरिटी कैरियर की जो मोशन है वो आपकी कंटिन्यू रहती है। तो IS इज़ दैट माइनॉरिटी कैरियर करंट, या इसको बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम करंट के जब बायस ना लगी हो। जब आपकी बायस लग जाए तो वो करंट इन्हांस हो जाती है एक्सपोनेंशियली। तो ये सिंपल एक रीज़न है, फिजिकल रीज़न है करंट का एक्सपोनेंशियली राइज होने का। अब ये किस रेशो से राइज करेगी एक्सपोनेंशियली, आपको मैंने कई बार बताया है कि कलेक्टर में जो आप करंट रिसीव कर रहे हैं दैट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इमिटर रीजन, और इमिटर रीजन में, इमिटर बेस रीजन में या बेस में, चूँकि इस वक्त हम कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो बेस करंट आपकी मैनिपुलेट हो रही है, चेंज हो रही है या कंट्रोल हो रही है VBE से। तो IB कंट्रोल हो रही है VBE से, और IB से फिर आगे बीटा टाइम्स आपकी करंट इंक्रीज हो रही है IC में। तो इस तरह हम इंट्यूटिवली कह सकते हैं कि IC राइजेस एक्सपोनेंशियली बाय कंट्रोलिंग VBE, एंड VBE इन टर्न आपको IB दे रहा है। तो इस तरह मैं ये लिख सकती हूँ। उसके बाद VBE को मैं आउटपुट वोल्टेज VI से रिलेट कर सकती हूँ, एंड VT एज़ यूजुअल आपकी थर्मल वोल्टेज है, क्योंकि शुरू में हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर में या किसी भी डायोड में और फिर लिहाजा ट्रांजिस्टर्स में जो आपकी करंट्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए हमारा ये वेरिएशन जो रेशो है वो थर्मल वोल्टेज या थर्मल एनर्जी, थर्मल वोल्टेज VT के साथ होता है, और थर्मल वोल्टेज जो है वो KT/Q होती है। So we can express in this slide, you can see that we can express the small signal component, current component IC in the output circuit, and the total output voltage VE as seen in the amplifier circuit. Both can be expressed, the current IC can be expressed exponentially by the ratio of the input voltage VBE and the thermal voltage VT.
Similarly, we can express the output voltage VO by using the relationship that we calculated in the previous slide, and we can also give an expression for the total saturation current IC when the Q point swings into the saturation region. So these two slides give us the relationship of the voltage as well as the current, AC voltage as well as the AC current in the output circuit. And then I can sum up these small signal operation relationship in this current slide, where I have listed all the 4 parameters that are utilized in the output circuit. And once again, to mention once again that the right hand side circuit shows you the small signal equivalent circuit, and the left hand side signal is your total amplifier circuit, which shows 2 biases, the DC bias VBE and the AC signal VBE. Then we will quickly define the amplifier gain, as we discussed in the previous lecture, that the amplifier gain can be expressed as the ratio of the output voltage to the input voltage. And obviously, since we are discussing the amplifier circuits, this gain has to be the gain of the AC output signal to the AC total output signal and the total input signal VI and total output voltage VO. We would discuss the voltage amplifier circuits in detail. Here is a simple circuit illustrating the amplifier transistor as an amplifier circuit. Again, you see 2 biases, the VB DC bias and Vin, that is the input signal. The biasing of the junction transistor is such that it has to operate in the active region. Hence, we can define that the emitter base junction is forward bias and the base collector junction is reverse bias. Another important thing is that since we are collecting a large IC collector, current in the collector loop with a very small input current IB, so we can approximate that since IB is quite small, negligible, so the total IC current that you get is approximately equal to the input current IE, because they are, according to Kirchhoff law, there are 3 current components in the transistor anyway: IB, IC and IE, and IE is divided in simple transistor operation action. Total current IE is divided between IB and IC. Hence, when base current is neglected, your collector current can be approximated by emitter current. This is the circuit redrawn once again, and now I show you the input signal, the AC input signal, and we can calculate the resistances and the current in the emitter lead. Now, in this transistor, you have seen that I have used a common biased PNP ट्रांजिस्टर. जैसा कि शुरू में मैं आपको बताती रही हूँ कि नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ NPN ट्रांजिस्टर और उसको मैं कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने एक PNP ट्रांजिस्टर को यूटिलाइज़ किया है और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन शो की है. ये मैं इसलिए मैंने थोड़ी सी बाइसिंग आपको मुख्तलिफ करके दिखाई कि आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि अगर हम NPN ट्रांजिस्टर ना यूज़ कर रहे हों और उसके बजाय PNP ट्रांजिस्टर यूज़ करें या कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बजाय कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करें तो फिर हमारी बाइसिंग किस तरह हो सकती है. So in order to give you a different flavor for this transparency, that is to define the voltage gain in a voltage amplifier, मैंने एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की है बाइसिंग के लिए और PNP ट्रांजिस्टर को यूज़ किया है. और चूँकि ये हम आज के लेक्चर में एम्पलीफायर्स को वंस अगेन डिस्कस कर रहे हैं तो एक AC सिग्नल को सुपर इम्पोज किया हुआ दिखाया गया है. तो अगर मैं इमिटर सर्किट में इनपुट सर्किट में RE को डिफ़ाइन करूं एज इमिटर रेजिस्टेंस और
करंट फिर मैं ओम्स लॉ की निस्बत से द करंट गोइंग टू द इमिटर लीड फ्रॉम द AC सिग्नल, उसको मैं IE कहूँ, तो हम ओम्स लॉ से ये करंट न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपको नज़र आ रही है इस स्लाइड में। उसके बाद मैं आउटपुट करंट, आउटपुट सर्किट में आउटपुट करंट अक्रॉस द लोड RC कैलकुलेट कर सकती हूँ, अगेन यूजिंग दी ओम्स लॉ। और अभी पिछली स्लाइड में मैंने कहा था कि चूंकि हम वेरी स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ IB चूज़ करते हैं, तो फिर IB को अगर मैं निगलेक्ट कर दूं तो IC आपकी अप्रॉक्सीमेटली वही चीज़ है जो IE है। तो इस तरह हम ये आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस RC कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ सिंपली IE टाइम्स RC। और फिर मैं ये चीज़ निकाल के मैं वोल्टेज गेन को डिफ़ाइन कर सकती हूँ। एम्पलीफायर वोल्टेज गेन, अभी जैसे मैंने बताया कि ये सिंपल रेशियो है बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट, तो वो आप निकाल सकते हैं आज। अब आप ये देखिए इंटरेस्टिंग रिजल्ट कि एम्प्लीफिकेशन फैक्टर या गेन जो हमने एम्पलीफायर का कैलकुलेट किया, दैट कम्स आउट टू बी द रेशियो ऑफ द लोड टू द बेस। यानी सिंपली ये आपकी रेशियो है आउटपुट सर्किट में रेजिस्टर, जिसको हम लोड रेजिस्टर कहते हैं, और इस केस में इनपुट रेजिस्टर जो हमने इमीटर के अक्रॉस लगाया हुआ है RE। अगर आपका ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता, जो कि अमूमन हम यूज़ करते हैं, तो ये रेशियो होती RC ओवर RB। लेकिन अब चूंकि हमारा बेस कॉमन है, तो हमने रेजिस्टर कहाँ लगाया हुआ है, इनपुट रेजिस्टर हमने इमीटर के अक्रॉस लगाया हुआ है। तो ये गौर से देखिए, तो एम्प्लीफिकेशन जो है वो सर्किट की बेसिकली डिपेंड कर रही है आउटपुट ओवर इनपुट रेजिस्टेंस की, या आउटपुट ओवर इनपुट वोल्टेज की। तो इसी मुनासबत से हमने इस ट्रांजिस्टर को, इसी मुनासबत से हम ट्रांसफ़र रेजिस्टर का भी नाम देते हैं। तो ट्रांसफ़र रेजिस्टर से आपका बना ट्रांजिस्टर, यानी आप रेजिस्टेंस को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आपकी स्मॉल रेजिस्टेंस RC और लोड रेजिस्टेंस कैपिटल RC की रेशियो से, यानी रेजिस्टेंस इन द आउटपुट सर्किट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इन द इनपुट सर्किट, ये एक दूसरी तरह की डेफिनेशन निकल आई आपके एम्पलीफायर गेन की। अब जैसा मैंने शुरू में बताया था आपको कि हैविंग डिस्कस्ड द Q पॉइंट, कि हमने 3 पैरामीटर सिलेक्ट किए थे ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के लिए, और फिर एम्पलीफायर्स जब हमने डिज़ाइन किए एम्पलीफायर सर्किट्स किसी सिंपल बेसिक ट्रांजिस्टर के, तो अगेन आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट में भी वही रहा, लार्ज सिग्नल ऑपरेशन में भी वही रहा कि आप Q पॉइंट को डिफ़ाइन करें। Q पॉइंट आपको 3 पैरामीटर्स देता है, IB, IC और VCE। तो ये 3 पैरामीटर चूज़ करने के बाद अब हमने इनमें कौन सी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के लिए टू बी यूज्ड एज इन एम्पलीफायर सर्किट्स, हमें डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं कि ऑपरेशन लिमिट्स। वो ऑपरेशन लिमिट्स हम किस मुनासबत से डिफ़ाइन करेंगे, मैं पहले ही आपको बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि टोटल पावर डिसिपेशन इन दी सर्किट को आपने जहन में रखना है। तो और ये टोटल पावर डिसिपेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड वोल्टेज इन द आउटपुट लूप या बेस कलेक्टर लूप में। ये हमें मैक्सिमम पावर डिसिपेशन आपकी होनी है ट्रांजिस्टर में। और ये 2 पैरामीटर VCE एंड IC, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये हम लोड लाइन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर जो आपकी वोल्टेज लिमिट VCE मैक्स जो है, वो अगर हमें पता हो तो फिर हम उससे IC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमें, यानी अगर VCE मैक्स पता है तो उसकी मुनासबत से हमें IC की वैल्यू, लोअर वैल्यू लेनी होगी, क्योंकि जो पावर PD मैक्स है डायोड में, वो तो एक फिक्स क्वांटिटी है जो आप अलाउ कर सकते हैं ट्रांजिस्टर में से गुजरने के लिए। तो अगर आप बिल्कुल पहली इक्वेशन को देखिए जो कि डेफिनेशन है पावर की, तो VCE अगर मैक्सिमम हो तो IC की वैल्यू आपको अप्रोप्रिएट चूज़ करनी होगी ताकि दोनों का प्रोडक्ट आपकी विद इन लिमिट्स रहे। और इसीलिए मैंने हेडिंग लिखी है ऑपरेटिंग लिमिट्स, यानी लिमिट ऑफ द मैक्सिमम पावर दैट यू कैन अलाउ टू पास इन द ट्रांजिस्टर।
और अगर IC मैक्स लेंगे तो फिर आपकी VCE की वैल्यू को लो होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को मैंने सम अप कर दिया है इस टेबल में कि अगर फ़र्ज़ करें मैं कोई वैल्यू चूज़ करती हूँ कि 0.5 वाट से ज़्यादा मेरी पावर नहीं होनी चाहिए, नहीं गुजरनी चाहिए आउटपुट सर्किट में, वरना वो डैमेज हो सकता है, तो फिर आप देखिए कि अगर मैं VCE 20 वोल्ट्स मैक्स लूँ और IC में 50 मिलीएम मैक्स लूँ, और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से लोड लाइन के ड्रॉ करने के साथ मिल सकती हैं। तो VCE मैक्स एंड IC मैक्स अगर मैंने लोड लाइन से चूज़ की हैं तो आप देखिए कि हम इस पावर को इस 3-4 तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि अगर VCE आपने मैक्सिमम चूज़ कर लिया तो VCE अगर आपकी कम है तो आप IC मैक्स है, और इसी तरह अगर VCE मैक्स है, मसलन नीचे आप देखें बॉटम पे कि VCE अगर आप 20 वोल्ट्स ले रहे हैं तो फिर आपकी IC की वैल्यू सबसे कम होगी, ताकि इन बोथ द केसेस योर प्रोडक्ट रिमेन्स हाफ अ वाट। तो इस तरह मैनिपुलेट करके आप इस स्लाइड में बेसिक सिंपल एग्जांपल मैंने ये देने की कोशिश की है कि आप ये ख्याल रखिए कि आपकी मैक्सिमम पावर डिसिपेशन क्या है, फिर उसकी मुनासबत से अगर आप IC मैक्सिमम गुजार रहे हैं ट्रांजिस्टर में, यानी आपका Q पॉइंट टूवर्ड्स हायर वैल्यू ऑफ, इफ़ यू आर वर्किंग एट हायर IB वैल्यूज़, तो फिर आपको VCE कम रखना है, और अगर आप VCE की वैल्यू ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको IB की स्मॉल वैल्यूज़ पे ऑपरेट करना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप पावर विद इन पावर लिमिट्स ऑपरेट करा सकते हैं ट्रांजिस्टर को। अब मैं एक नई पैरामीटर डिफाइन करूंगी, द ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो बेसिकली ये ट्रांसकंडक्टेंस जो है वो रेशो है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। फॉर अ बाइपोलर डिवाइस इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस वोल्टेज। अब गौर से देखिए इस सिंपल डेफिनेशन को कि आप कलेक्टर करंट बेसिकली आउटपुट सिग्नल में कहाँ से रिसीव कर रहे हैं। ये कलेक्टर करंट IC ओरिजिनेट हो रही है, बन रही है कलेक्टर करंट में IB से, तो IB आप कंट्रोल करते हैं और अ लार्ज अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट IC आपको रिसीव हो जाती है। और IC को IB को जैसे मैंने शुरू में बताया था क्या चीज़ कंट्रोल कर रही है, VBE। तो बेसिकली VBE यानी इनपुट सर्किट की वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज इनपुट सर्किट में VBE से कंट्रोल हो रही है कलेक्टर करंट IC। तो इन दो चीज़ों को जब आप कंट्रोल की रेशियो लें, यानी आउटपुट सर्किट की करंट IC और इनपुट करंट की वोल्टेज, करंट वोल्टेज का रिलेशनशिप, ये टर्म फिर डिफाइन करता है ट्रांस कंडक्टेंस, कि VBE से ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है एक आउटपुट सर्किट की करंट IC। इन दोनों की रेशियो को हम डिफाइन करते हैं एज अ फैक्टर, एज अ पैरामीटर G known as transconductance of the given amplifier circuit। और सिंबल जैसा मैंने अभी कहा GM उसको रिप्रेजेंट करता है। तो कंडक्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस की वही यूनिट है जो कि ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर्स में या डायोड्स में आप कंडक्टेंस की यूनिट्स को डिफाइन करते हैं 1/ओम से, रेसिप्रिकल ऑफ ओम, क्योंकि रेसिप्रिकल ऑफ रेजिस्टेंस को ही मैंने कंडक्टेंस कहा है। अब इसको मैं मैथमेटिकली डिफाइन कर देती हूँ कि GM इज सिंपली द रेशियो ऑफ द चेंज इन कलेक्टर करंट DI टू द चेंज इन बेस वोल्टेज VBE, या सिंपली DI/DE, यानी करंट एंड वोल्टेज की जो रेशियो है वो आपको GM है। ट्रांस कंडक्टेंस डिफाइंस another working parameter, operational parameter for a transistor to be used as an amplifier circuit। ये अब मैंने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई है, क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया कि दिस इज़ अ ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक कि आप VBE वोल्टेज बढ़ाते हैं जब इनपुट सर्किट में तो IB चेंज होता है, और IB की वजह से मैग्नीफाई होके करंट IC आपको मिलती है। तो मैंने डायरेक्टली VBE और IC को प्लॉट कर लिया। अब यहाँ आप दो
एक पैरामीटर इनपुट सर्किट का है विच इज़ VBE और दूसरा पैरामीटर आपका आउटपुट सर्किट का है विच इज़ IC, हेंस द हेडिंग ट्रांस कंडक्टेंस कि VBE मैनिपुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है करंट IC। तो टॉप पे मैंने करंट कलेक्टर करंट का रिलेशन लिखा है जिसमें आपको एक्सपोनेंशियली वेरिंग होती हुई करंट नज़र आ रही है। VBE के इंक्रीज़ करने से आपकी करंट IC एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रही है। फिर मैंने ट्रांसकंडक्टेंस का रिलेशनशिप लिखा एंड फाइनली आई राइट दैट द थर्मल वोल्टेज विच यू सी ऑन द इन द फर्स्ट लाइन इज़ द थर्मल एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है KT, और चूंकि मैंने वोल्टेज में एक्सप्रेस करना है तो ये 26 मिली वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली थर्मल वोल्टेज या थर्मल एनर्जी वुड बी 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी की यूनिट्स में दें, और अगर वोल्टेज की यूनिट्स में दें तो ये सिंपली 26 या 25 मिली वोल्ट्स होगा। 0.7 अगेन आप देख रहे हैं कि ये नी वोल्टेज या स्टार्टिंग वोल्टेज है कि जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना शुरू या डायोड कंडक्ट करना शुरू कर देता है, और चूंकि मैं अमूमन सिलिकॉन की मिसाल लेती हूँ सो 0.7 वोल्ट्स इज़ द नी वोल्टेज या टेक ऑफ वोल्टेज ऑफ द डायोड, और इस केस में ये डायोड हमारा इमिटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन है ट्रांजिस्टर का। इस ट्रांसपेरेंसी में मैंने ट्रांस कंडक्टेंस और कलेक्टर करंट के रिलेशनशिप को सम अप कर दिया है ताकि आगे हम प्रोसीड कर सकें। सो बेसिकली दिस इज़ अ समरी ऑफ द ट्रांस कंडक्टेंस एंड कलेक्टर करंट IC फॉर गिवन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट। तो ये सारी चीज़ें मैंने सम अप कर दी हैं। तो नीचे का रिलेशनशिप मैंने कहाँ से ऑब्टेन किया, ये एक e⁻x के टेलर एक्सपेंशन से मैंने ऑब्टेन किया। अब मैं ट्रांस कंडक्टेंस को आप देख रहे होंगे इस स्लाइड में मैंने थर्मल एनर्जी या थर्मल वोल्टेज के साथ कोरिलेट किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं VT अगेन कैन बी कैलकुलेटेड, दैट इज द थर्मल वोल्टेज इज सिंपली रूम टेम्परेचर वोल्टेज विच इज़ KT ओवर Q वेयर Q इज़ द इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो इस सर्किट में आप देख रहे हैं कि हमारा G जो ट्रांस कंडक्टेंस फैक्टर निकला एम्पलीफायर का वो टेम्परेचर डिपेंडेंट आपको नज़र आ रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है आपकी ट्रांस कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको ट्रांस कंडक्टेंस आपकी डिक्रीज़ करेगी यानी रेजिस्टेंस सर्किट की बढ़ेगी। अब मैं एक नए टॉपिक की तरफ जाती हूँ। हैविंग डिस्कस्ड द लार्ज सिग्नल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड देन द स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, अब हम जाते हैं थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं mechanism या feature of the coupling capacitors that we include in various transistor amplifier circuits. So AC coupling through capacitors is used to inject an AC input signal and extract the AC output signal without disturbing the DC Q point. ये लिखने का मकसद क्या है या हाईलाइट क्या है कैपेसिटर सर्किट्स को यूज़ करने की, वो ये है कि जैसे शुरू में मैंने बताया कि एम्पलीफायर सर्किट्स डिज़ाइन कैसे करते हैं किसी ट्रांजिस्टर को यूज़ करके. Transistor operates on the principle that emitter base junction should be forward biased, base collector junction should be reverse biased. तो आपको दो biases चाहिए हुई, एक इनपुट सर्किट में DC bias, एक आउटपुट सर्किट में अगेन DC bias. इनपुट सर्किट की इमिटर बेस सर्किट की जो बाइसिंग है वो फॉरवर्ड होती है, बेस कलेक्टर की जो बाइसिंग है वो रिवर्स बाइस होती है. अब चूंकि आज के लेक्चर में हम AC सिग्नल्स एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, एम्पलीफायर्स को डिस्कस कर रहे हैं. एम्पलीफायर्स के लिए हमने एक एडिशनल AC सिग्नल को सुपर इम्पोज किया था DC वोल्टेज VBE के ऊपर. तो कैपेसिटर्स का यहाँ पर फंक्शन ये है, ऑपरेशन ये है कि जब आप एक कैपेसिटर मसलन C1 लगाएं इनपुट सर्किट में और दूसरा कैपेसिटर आप आउटपुट सर्किट में लगाएं, तो ये कैपेसिटर्स जो हैं ये आपके सेपरेट करते हैं DC कंपोनेंट्स को फ्रॉम AC कंपोनेंट्स. ये किस लिए ज़रूरी है कि आपके AC की वजह से, AC सिग्नल के सुपर इम्पोज होने की वजह से आपका DC Q पॉइंट चेंज ना हो. Q पॉइंट के चेंज होने से आपको मालूम है कि हमारा सिग्नल डिस्टॉर्ट हो सकता है, क्योंकि अगर Q पॉइंट में वेरिएशन आई, वो सैचुरेशन रीजन में स्विंग करके चला जाए लोड लाइन के ऊपर की तरफ, तो आपका टॉप
पॉजिटिव पीक क्लिप हो सकती है, और अगर कट ऑफ रीजन में आ जाए स्विंग करके क्यू पॉइंट तो आपकी नेगेटिव पीक क्लिप हो सकती है। तो इन सिग्नल की, एसी सिग्नल की डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने के लिए, यानी एक अनडिस्टॉर्टेड सिग्नल हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि क्यू पॉइंट आपका लीनियर रीजन ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में ही रहे और बहुत ज़्यादा उसकी सैचुरेशन या कट ऑफ रीजन में स्विंग ना हो। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एसी कपलिंग कर देते हैं थ्रू कैपेसिटर्स, कि आप एसी एक इनपुट सिग्नल इंजेक्ट करते हैं और एसी सिग्नल ही आप आउटपुट सर्किट में रिसीव कर लेते हैं, और ये जो कैपेसिटर्स हैं ये आपके डीसी कंपोनेंट को डिस्टर्ब नहीं होने देते। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या अफेक्ट होता है कैपेसिटर्स को एम्पलीफायर सर्किट में एडिशन में लगाने से, कि कैपेसिटर्स प्रोवाइड नेग्लिजिबल इम्पीडेंस एट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड ओपन सर्किट्स एट डीसी। आगे चल के अभी आज के लेक्चर में हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे लो फ्रीक्वेंसीज पे, और किसी दूसरे लेक्चर में, फ्यूचर के दूसरे लेक्चर में हम हाई फ्रीक्वेंसीज को भी डिस्कस करेंगे। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड नंबर 27 में आप ये देख रहे हैं कि हमने एक एडिशनल कंपोनेंट का जिक्र किया विच इज़ कैपेसिटर्स, और कैपेसिटर्स को अब मैं इस ट्रांसपेरेंसी में दोबारा दिखा रही हूँ, सर्किट में दोबारा दिखा रही हूँ। In this type of circuit, only the AC component reaches the load because of the capacitive coupling. और जो highlight salient feature है एम्पलीफायर सर्किट्स का, वो उसी तरह इंटैक्ट रहता है, यानी ये कि आपका 180 डिग्री एसी सिग्नल आउट ऑफ फेज होगा बनिस्बत कंपेयर टू द इनपुट सिग्नल। तो अब आप ज़रा तफसील से इस स्लाइड में एम्पलीफायर सर्किट को देखिए जिसमें मैंने कैपेसिटर C1 और C2 इंक्लूड किए हुए। C1 is defined as the input circuit capacitor and C2 sometime is labeled as the output capacitor connected to the collector terminal. हम एक तीसरा कैपेसिटर भी लगा सकते हैं जो आगे चल के मैं दिखाऊंगी आपको, जो हम इमिटर टर्मिनल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो यू नोटिस 3 रेजिस्टेंसेस एज यूजुअल। R1, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी इस स्लाइड में, कि इस पर्टिकुलर सर्किट में अब जो मैंने बेस को बाइसिंग किया हुआ है वो मैंने एज अ पोटेंशियल डिवाइडर बाइस किया हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस particular amplifier circuit में in which I am using the bipolar junction transistor as with a coupling capacitor, तो पिछले एक लेक्चर पूरा मैंने डिवोट किया था पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट में। तो ये स्लाइड नंबर 28 यूनिक है, इंटरेस्टिंग है इन दिस सेंस आई एम यूजिंग अ सिंगल बाइसिंग सोर्स VCC both for the input loop as well as the output loop. तो VCC input loop यानी emitter base को forward bias कर रहा है, और सेम VCC आउटपुट लूप यानी कलेक्टर इमिटर को रिवर्स बाइस कर रहा है। तो सिंगल बाइसिंग सोर्स VCC मैंने लिया है, और बाइस बेस बाइसिंग आपके पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट है R1 एंड R2। ये पूरा एक लेक्चर मैंने डिवोट किया था जिसको मैंने लेबल किया था पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट्स फॉर द ट्रांजिस्टर। तो ये वही स्लाइड मैंने दोबारा यूज़ की है, वही सर्किट मैंने दोबारा यूज़ किया है अब एम्पलीफायर्स के तौर पे। तो ओनली डिफरेंस जो आप अब इस सर्किट में और पहले वाले पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग के सर्किट में जो आपने देखा वो ये है कि चूंकि अब ये एक एम्पलीफायर सर्किट है तो लिहाजा आपको एक बहुत डिस्टिंक्ट बॉक्स में ब्लू एसी सिग्नल नज़र आ रहा है। तो अब एक एसी सिग्नल मैंने इनकॉर्पोरेट किया है पोटेंशियल डिवाइडर सिंगल सोर्स बाइसिंग सर्किट में। तो R1 R2 एक्ट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग सर्किट, और बाइसिंग आपकी VCC सिंगल पावर सप्लाई से हो रही है। आगे हाईलाइट क्या है कि एक मैंने क्यू पॉइंट वोल्टेज चूज़ की VB, और उसका एम्पलीट्यूड भी मैंने आपको दिखाया है, और साथ ही आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिल रही है तो वोल्टेज में 180 डिग्री का आपको फेज़ नज़र आ रहा है, जबकि करंट्स में आपको फेज़ नहीं नज़र आ रहा। तो ये सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट करके दिखाई हुई हैं। तो दिस इज़ अ वेरी
इंटरेस्टिंग एम्पलीफायर सर्किट जिसमें आपको 3 हाईलाइटेड फीचर्स नज़र आ रहे हैं. सिंगल पावर सप्लाई VCC फॉर बायसिंग द इनपुट as well as the output junctions of the transistor. फिर आपको potential divider circuit नज़र आ रहा है 2 resistances R1 and R2 के साथ. फिर आपको load resistor नज़र आ रहा है जिसमें आप RL के अक्रॉस आउटपुट सिग्नल को व्यू कर सकते हैं और साथ में आपको आउटपुट वोल्टेज की 180 डिग्री की फेज़ भी नज़र आ रही है. तो अगली स्लाइड में हम आउटपुट वोल्टेज को थेवेनिन वोल्टेज की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कैलकुलेशंस हमने पिछले पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग के लेक्चर में काफ़ी तफसील से फॉर्मूलाज दिए थे, रिलेशन करंट वोल्टेज रिलेशन दिए थे कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये उसी सर्किट की एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशन है. ये पिछले सर्किट को मैंने एक और अंदाज में दिखा दिया है कि अगेन लेबल मैंने कर दिए हैं कैपेसिटर C1 और C2 के बजाय एक मैंने जनरल नॉमेनक्लेचर दे दिया है कि इनपुट लूप में कैपेसिटर है C इन और आउटपुट लूप के कैपेसिटर को मैंने C आउट कह दिया है. बेस को जो आपके वोल्टेज आ रही है दैट इज़ V इन. दिस जैसा मैंने पहले कहा कि अब मैं सिर्फ AC सिग्नल आपको शो कर रही हूँ और इसी तरह जो आपके लोड RL के अक्रॉस जो आउटपुट मिल रही है वो VO है. सो यू कैन सी द 2 पॉइंट्स एट विच वी इंजेक्ट एन AC सिग्नल. बेस पर आप AC सिग्नल इंजेक्ट कर रहे हैं उसको मैंने VI कहा और लोड के अक्रॉस आप मेजर कर रहे हैं आउटपुट सिग्नल दैट इज़ VO. तो ये 2 डायग्राम्स टिपिकल डायग्राम्स है. ये पिछली डायग्राम एक दफ़ा मैं आपको दोबारा दिखा दूं. ये वाला सर्किट और ये नेक्स्ट सर्किट मोर और लेस आर द सेम थिंग जो कि किसी भी एम्पलीफायर सर्किट में जहां कैपेसिटर्स लगाए यूटिलाइज किए गए हों, कैपेसिटर एम्पलीफायर सर्किट्स की ये टिपिकल सर्किट डायग्राम्स है. अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे के इस पोटेंशियल डिवाइडर, यानी ये भी वही सर्किट है जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको शो किया. लेट मी गो बैक अगेन टू दैट स्लाइड. अब आप इस स्लाइड में देखिए कि एक स्मॉल रेजिस्टेंस RS मैंने लगाई है बेस के साथ. साथ में मैंने पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट R1 R2 दिखाया है फॉर दी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन VOO और मैंने आउटपुट कलेक्टर पे RO दिखाया है एंड लोड RL दिखाया है. अब इन तमाम रेजिस्टर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने यहाँ दे दी है ताकि आपको अगर आगे चल के लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स दूंगी तो हम इन एग्जांपल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको एम्पलीफायर इक्विवेलेंट सर्किट, दी स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर सर्किट की बात करूंगी और हाइब्रिड पैरामीटर्स की बात करूंगी. लेकिन ये न्यूमेरिकल एग्जांपल अगले लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे. तो ये सर्किट ऑफ स्लाइड 30 मैं दोबारा यूज़ करूंगी तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इसलिए मैंने दी हुई हैं. तो इन ए प्रैक्टिकल एम्पलीफायर डिज़ाइन C1 एंड C3 are large coupling capacitors और DC blocking capacitors. उसी पॉइंट को मैंने दोबारा से रीफ्रेज किया है कि कपलिंग कैपेसिटर्स, एम्पलीफायर सर्किट्स विद कपलिंग कैपेसिटर्स, अगर हम ये हेडिंग दें कि सबसे पहले हमने आज के लेक्चर में क्या शुरू किया था, एम्पलीफायर सर्किट्स की डेफिनेशन दी थी कि अगर हम AC सिग्नल सुपर इम्पोज करें किसी DC बायस ट्रांजिस्टर के ऊपर तो वो सर्किट कहलाएगा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट. उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे तो हमने कहा था कपलिंग कैपेसिटर भी हम सर्किट में इंक्लूड करते हैं. तो ये कपलिंग कैपेसिटर क्या करते हैं कि ये DC कंपोनेंट को ब्लॉक कर देते हैं ताकि आप आउटपुट में सिर्फ प्योर AC सिग्नल देख सकें. उसकी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारा क्यू पॉइंट डिस्टर्ब हो किसी भी तरह, DC क्यू पॉइंट डिस्टर्ब हो किसी भी तरह बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द AC सिग्नल. तो इस वजह से हम बायस पास कैपेसिटर्स या कपलिंग कैपेसिटर्स का यूटिलाइज करते हैं सर्किट्स में. So C1 is the input coupling capacitor, C3 is the output circuit का coupling capacitor. और ये दोनों की अगर हम एक fictitious value ले लें, a very large value,
For example, we can just say that they are infinitely high values. तो फिर they are very large high values, जिसको mathematically मैंने infinite represent किया है कि if we choose very large values of capacitors, तो ये आपके DC component को block कर देते हैं और output में आपको AC component मिलेगा. इनकी रिएक्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज 1/ωc एट सिग्नल फ्रीक्वेंसी is their reactance is negligible and the frequencies, जैसे अभी मैंने बताया कि हम इस वक्त स्मॉल फ्रीक्वेंसीज को चूज करेंगे क्योंकि लार्ज फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन एक उसमें थोड़ा कुछ और चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो फॉर द टाइम बीइंग फॉर दिस सर्किट I am choosing the values of coupling capacitor C1 and C3 to be quite large but yet operating at small frequency levels. So effectively we can call them as open circuits for these circuits when DC bias is considered. तो अगली स्लाइड में मैं इसी को दोबारा दिखाऊंगी कि C2 is a bypass capacitor, यानी C2 आपको जो इमिटर के साथ नज़र आ रहा है. इफ़ आई गो बैक अगेन टू द प्रीवियस स्लाइड, ये आप देखिए कि इस वक्त मैंने C2 का जिक्र नहीं किया था पहले कि C1 आपको इनपुट सर्किट में नज़र आ रहा है और C3 आपको आउटपुट सर्किट में नज़र आ रहा है और C2 जो है मैंने रेजिस्टर के साथ लगाया हुआ है. इनफैक्ट ये तीनों कैपेसिटर इसलिए मैंने लगाए कि जैसे मैंने अभी जिक्र किया पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का, ट्रांजिस्टर बायस्ड with a single power supply and utilizing the potential divider biasing for the base. तो हमने बेस पर पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया हुआ है सिंगल पावर सप्लाई VCC से और उसके साथ ही मैंने इमिटर रेजिस्टेंस RE भी लगाई हुई है. तो इस तरह तीन कैपेसिटर C1, C3 and C2 नज़र आ रहे हैं. C2 is a bypass capacitor. It provides a low impedance path for AC current from emitter to ground. It effectively removes RE. RE क्यों की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका एक गुड क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी पॉइंट आपका रहे फ्रॉम द सर्किट व्हेन AC सिग्नल्स आर कंसिडर्ड. तो AC सिग्नल जब आप सुपर इम्पोज किए हुए हैं तो C2 हमने इमिटर टर्मिनल के साथ लगा दिया है और वो एक्ट कर रहा है एज अ बाईपास कैपेसिटर के तौर पे. अब मैं फाइनली DC इक्विवेलेंट सर्किट्स को डिस्कस कर लेती हूँ. तो हमने आज के लेक्चर में टू समराइज एट दिस पॉइंट, आज के लेक्चर में हमने समरी दी अपने प्रीवियस लेक्चर की. वो समरी क्या थी कि सिंपल एम्पलीफायर सर्किट्स क्या होते हैं. सिंपल एम्पलीफायर सर्किट ट्रांजिस्टर सर्किट्स हैं जिसमें कि आपने सिर्फ और सिर्फ AC सिग्नल को सुपर इम्पोज किया हुआ है अपने DC सिग्नल पर, लिहाजा वो लार्ज सिग्नल ट्रांजिस्टर ऑपरेशन का कहलाया. उसके बाद हमने स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन को डिस्कस किया कि हम वेरियस करंट कंपोनेंट स्मॉल सिग्नल किस मुनासबत से कि आप क्यू पॉइंट को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं ओनली इन द लीनियर रीजन ऑफ द एम्पलीफायर ताकि एम्पलीफायर आपका लीनियर एम्पलीफायर के तौर पे काम करे. तो AC सिग्नल हैज़ टू बी स्मॉल एज कंपेयर टू योर DC बेस वोल्टेज. फिर फाइनली हमने सर्किट में कैपेसिटर्स का भी इजाफा कर दिया एंड हेंस द एम्पलीफायर सर्किट आर नोन एज बाईपास कपलिंग बाईपास एज वेल एज कपलिंग कैपेसिटर सर्किट. कपलिंग कैपेसिटर हम लगाते हैं बेस के साथ और कलेक्टर के साथ ताकि आपके DC को ब्लॉक कर सकें और बाईपास हम लगाते हैं इमिटर के साथ ताकि आपको आपकी इम्पीडेंस सर्किट की लो हो जाए. अब हम इक्विवेलेंट सर्किट DC इक्विवेलेंट सर्किट को डिस्कस करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर. तो DC इक्विवेलेंट सर्किट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ऑल कैपेसिटर्स इन दी ओरिजिनल एम्पलीफायर सर्किट्स आर रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट्स. जैसे मैंने अभी बताया था ऊपर की स्लाइड में कि अगर आपकी लो फ्रीक्वेंसीज हों और हाई कैपेसिटर वैल्यूज़ हों तो आप उनको ओपन सर्किट के तौर पे DC ऑपरेशन के लिए DC इक्विवेलेंट सर्किट्स के लिए उनको ओपन सर्किट के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं.
यानी डिस्कनेक्टिंग VI, RI एंड R3 फ्रॉम दिस सर्किट, और सिर्फ आपका RE इंटैक्ट रह जाता है जहाँ के आपने ब्लॉकिंग कैपेसिटर C2 लगाया हुआ है. And then the transistor Q value will be replaced by its DC model. तो whole idea DC equivalent circuit दिखाने का ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ DC Q point को emphasis दें, क्योंकि Q point is the one which determines the transistor operation, and transistor operation in turn defines your एम्पलीफायर ऑपरेशन. तो ये एक कपलिंग कैपेसिटर को यूज़ करते हुए, कपलिंग कैपेसिटर्स को सर्किट में शो करते हुए एक सिंपल एम्पलीफायर सर्किट है. तो इसमें हम DC एंड AC एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं. अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट यूज़ किया है फॉर बायसिंग द बेस. तो to start with, as you appreciate, this is an NPN transistor. The base taken into common emitter configuration, NPN transistor लिया, उसको common emitter configuration में bias किया, और base पर जो आप voltage दे रहे हैं, input voltage for generating the input current IB, वो आपने single power supply VCC से ली है. तो it is a voltage divider biasing of the base for the amplifier transistor circuit. Emitter terminal पे हमने resistor लगाया है RE, और उसके साथ आपने एक coupling capacitor लगाया है C2. और अब आप फिर वही appreciate कर सकते हैं the highlight of a transistor amplifier circuit के feature कि input का amplitude और output के amplitude को आप relative एम्पलीट्यूड को अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अ स्मॉल इनपुट सिग्नल गिव्स यू अ लार्ज आउटपुट सिग्नल. और इसी तरह आप दे सकते हैं कि इनपुट में जब पॉजिटिव पीक है तो आउटपुट में फिर आपकी नेगेटिव पीक आ रही है. तो इवन दो इट इज़ एन एम्पलीफाइड सिग्नल, बट येट देयर इज़ अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट दैट यू कैन सी. और ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट की हम एक्सप्लेनेशन कई दफ़ा पहले भी दे चुके हैं. तो इस ट्रांजिस्टर इस सर्किट को डिफ़ाइन करने के बाद हम आगे चलते हैं और बताते हैं कि इसमें हमारे DC इक्विवेलेंट सर्किट, जो कि मैंने राइट हैंड साइड ऑफ दिस बॉक्स लिया है, और AC सिग्नल, ये बिल्कुल वही सर्किट है जो इफ़ आई गो बैक अगेन, आप इसको गौर से देखिए, इसी को मैंने काइंड ऑफ रीप्रोड्यूस किया है और एक इक्विवेलेंट DC इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया है. तो लेट्स कंसंट्रेट फर्स्ट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बॉक्स. ये आपको वही आपका ओरिजिनल एम्पलीफायर सर्किट है कपलिंग कैपेसिटर के साथ. तो C1 एंड C2 अब आपके कैपेसिटर्स हैं इनपुट और आउटपुट सर्किट में. C3 आपका कैपेसिटर है टर्मिनल इमिटर रेजिस्टर RE के साथ, और सिंगल पावर सप्लाई 12 वोल्ट की मैंने ली है. R1 एंड R2 कॉन्स्टिट्यूट पोटेंशियल डिवाइडर बायस सर्किट फॉर द इनपुट लूप. तो अब मैंने पिंक बॉक्सेस में डिसकनेक्ट कर दिए हैं. आपके जो पिंक बॉक्सेस में आपको दिखाए हैं वो मैंने AC सिग्नल को डिसकनेक्ट करके दिखाया है, और इसी तरह मैंने AC आउटपुट को डिसकनेक्ट करके दिखाया है. तो बीच में आपका सिर्फ DC इक्विवेलेंट सर्किट रह गया. तो इफ़ आई ड्रॉ अ DC इक्विवेलेंट सर्किट बाय डिसकनेक्टिंग द AC input and AC output circuit, then we can call it as a DC equivalent for the transistor operation. और इसको मैं इस तरह हाईलाइट कर सकती हूँ कि अब ये देखिए कि आपके RE जो है पोर्शन, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया. जो आपकी रेजिस्टर लगी हुई है पूरे सर्किट में RE, यानी इमिटर के साथ जो रेजिस्टेंस RE कनेक्ट की हुई है, उसको मैं इक्विवेलेंट पैरेलल सर्किट R1 एंड R2 के साथ रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और उसको मैंने डैश बॉक्स में करके दिखाया हुआ है. इसी तरह आप आउटपुट की रेजिस्टेंस को भी RC एंड R3 RE के साथ डेजिग्नेट कर सकते हैं, या R3 के साथ डेजिग्नेट कर सकते हैं. तो R1 एंड R2 आर पैरेलल इन पैरेलल,
और ये आपकी बेस थेवेनिन इक्वेशन से, आप थेवेनिन फॉर्मूले से आप बेस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। So in step 2 we can calculate the R1 R2 resistances of the potential divider circuit, और जो मैंने डैश्ड लाइन में दिखाया है कि R1 और R2 को आप थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल के बेस रेजिस्टेंस RB कह दें, जो राइट हैंड साइड की मैंने बॉक्स में दिखाया। तो R1 and R2 have been replaced by RB by calculating the parallel resistance using the Thevenin equivalent formula, and we can then connect a single we can approximate it with a single resistor with the base RB, and your input is now RB. इसी तरह आउटपुट रेजिस्टेंस को भी आप एज अ पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ RC एंड R3। तो इस स्लाइड नंबर 36 में आप देखेंगे कि मैंने टोटल जो आपका कंप्लीट सर्किट है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसका DC इक्विवेलेंट मैंने राइट हैंड साइड पे दिखा दिया बाय अस्यूमिंग देम टू बी बाय utilizing a Thevenin formula for calculating the base resistance RB and the output circuit resistance RO। तो ये करने के बाद हम क्या कहते हैं कि कपलिंग कैपेसिटर CC एंड द इमिटर बाईपास कैपेसिटर CE, यानी जो आपके इमिटर पे कैपेसिटर लगाया हुआ है और जो कलेक्टर पे हमने कैपेसिटर लगाया हुआ है, तो कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर आर रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट्स, क्योंकि उनकी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आप बहुत हाई वैल्यूज़ एंड लो फ्रीक्वेंसीज चूज़ करें तो उनको हम अस्यूम कर सकते हैं कि दे हैव बीन शॉर्टेड टू ग्राउंड। तो उनको हम इस तरह हम AC इक्विवेलेंट सर्किट्स से DC इक्विवेलेंट सर्किट और फिर AC इक्विवेलेंट सर्किट्स हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी टोटल एम्पलीफायर सर्किट से। तो पिछली एग्जांपल थी हमारे DC इक्विवेलेंट सर्किट की, और ये अब एग्जांपल है हमारे AC इक्विवेलेंट सर्किट की। तो DC वोल्टेजेस सप्लाई इज रिप्लेस विद शॉर्ट सर्किट्स व्हिच इन दिस केस इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। तो इस तरह हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक किसी भी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के एम्पलीफायर सर्किट्स में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करके। कुछ कैपेसिटर्स आपके कपलिंग कैपेसिटर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं और कुछ कैपेसिटर्स आपके बाईपास कैपेसिटर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग कि आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं। तो हम कपलिंग कैपेसिटर्स जो हम कलेक्टर सर्किट में और बेस सर्किट में, यानी इनपुट और आउटपुट सर्किट में लेते हैं, और बाईपास कैपेसिटर जो कि हमने इस वक्त एमिटर टर्मिनल के साथ लगाया हुआ है, इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करके हम एम्पलीफायर की सर्किट्स की रीडिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो एक कहला रहे हैं आपके AC इक्विवेलेंट सर्किट और दूसरा हमने कहलाए DC इक्विवेलेंट सर्किट्स। अभी मेरा AC इक्विवेलेंट सर्किट कंटिन्यूड है और उसको मैंने दोबारा, क्योंकि मैंने टॉप पे लिखा हुआ है कंटिन्यूड, अब मैं आपको बेस रेजिस्टेंस, टोटल बेस रेजिस्टेंस इस सर्किट की कैलकुलेट करके बताती हूँ। तो आपने देखा होगा कि R1 और R2 की वैल्यूज़ हमने 10 किलो ओम एंड 30 किलो ओम यूज़ की थी। तो बेस रेजिस्टेंस टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हमने आउटपुट सर्किट में दो रजिस्टर लगाए हुए थे, वन विद द कलेक्टर टर्मिनल RC और तीसरा विद द इमिटर टर्मिनल R3 या RE, उनकी वैल्यूज़ भी लिखी हुई थी। तो आपके इनपुट सर्किट में इनपुट सर्किट में टोटल बेस रजिस्टर RB निकल आई थेवेनिन इक्विवेलेंट से यूज़ करके, और इसी तरह आउटपुट सर्किट में आपकी रेजिस्टेंस R आ गई। तो ये दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज 7.5 और 4.12 किलो ओम रिस्पेक्टिवली निकली हैं। R1 आपका बेस R1 रेजिस्टर जो कि आपने AC के साथ लगाया हुआ था वो अभी मौजूद है। By combining parallel resistance into equivalent RB and R, the equivalent AC circuit has been designed, and then the transistor will be replaced by its equivalent small signal AC model जो कि अभी हमने develop करना है। ये अब मैं आपको analysis of the common emitter amplifier circuit की highlights दे देती हूँ कि सबसे पहले टॉप पे आप देखिए हमने
डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट निकाला और स्मॉल सिग्नल पैरामीटर कैलकुलेट किए। तो ये स्टेप नंबर 1 था। तो इस ट्रांसपेरेंसी को हमें बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैंने हम अल्टीमेट एक सिंपल ट्रांजिस्टर सर्किट को हमने डिज़ाइन किया। एम्पलीफायर सर्किट को, एम्पलीफायर सर्किट, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट से मुराद होती है कि न सिर्फ अब आपका डीसी कंपोनेंट है बल्कि आपका एसी कंपोनेंट भी सुपर इम्पोज किया हुआ है। तो यू कैन सी वेरी क्लियरली ऑन द वेरी टॉप ऑफ दिस स्लाइड, राइट हैंड साइड की आप टॉप सर्किट को देखें तो वहाँ आपको एसी सिग्नल नज़र आ रहा है। साथ में मैंने कपलिंग कैपेसिटर C1 एंड C2 लगाए हुए हैं। तो C1 एंड C2 आपके कपलिंग कैपेसिटर्स हैं और C3 आपका बाईपास कैपेसिटर है। तो ये और पोटेंशियल डिवाइडर, क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल यही था कि आप एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करें कि जो कि सिंगल वोल्टेज पावर सप्लाई VCC से ऑपरेट कर रहा हो। फिर हम चाह रहे थे कि क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी भी बरकरार रहे। उसके लिए हमने पिछले लेक्चर में देखा कि बेस्ट सर्किट टू बी यूटिलाइज्ड इज़ द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और बेस पर जो आप वोल्टेज दें वो पोटेंशियल डिवाइडर बेस, पोटेंशियल डिवाइडर सिंगल पावर सप्लाई सर्किट हो फॉर द बेस। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने बायस किया हुआ है ट्रांजिस्टर को सिंगल पावर सप्लाई के साथ, और पोटेंशियल डिवाइडर बेस बायस सर्किट हमने लगाया हुआ है बेस के ऊपर। तो ये तीनों चारों चीज़ें आप देखिए, ये बहुत कंप्लीट एक इंटरेस्टिंग सर्किट है जो टॉप पे आपको नज़र आ रहा है। सिंगल पावर सप्लाई से आपने बेस को बायस किया हुआ है, बेस एमिटर जंक्शन को बायस किया हुआ है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ली हुई है, और बेस पर हमने पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनाया हुआ है यूटिलाइजिंग R1 एंड R2। फिर हमने कपलिंग कैपेसिटर एंड बाईपास कैपेसिटर हमने यूटिलाइज किए। तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सर्किट है फॉर एम्पलीफायर्स। तो डिटर्मिन डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट एंड कैलकुलेट द स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स। इसका क्या मतलब है कि आप क्यू पॉइंट चूज़ करें बाय सिलेक्टिंग वैल्यूज़ ऑफ IB, IC एंड VCE, ऐसी कि आपका अनडिस्टॉर्टेड सिग्नल आपको मिले, अनडिस्टॉर्टेड एम्पलीफाइड सिग्नल मिले। और फिर वहाँ से हम स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स ले लेते हैं। स्मॉल सिग्नल पैरामीटर्स से मेरी क्या मुराद है कि हम IC की वैल्यूज़, VCE की वैल्यू, AC IC एंड AC VCE की वैल्यू भी डिटर्मिन कर सकें, जो कि मैं पहले लिस्ट कर चुकी हूँ। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं? स्टेप 2 में हम AC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द एम्पलीफायर ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें DC वोल्टेजेस सोर्सेज आर शॉर्टेड टू द ग्राउंड एंड DC करंट सोर्सेज आर ओपन सर्किटेड। तो वो इस आप टॉप के सर्किट को देखिए, नंबर 1 को देखें और फिर नंबर 2 को देखें, तो आपको दो इक्विवेलेंट AC इक्विवेलेंट फ्रॉम द DC ऑपरेटिंग वोल्टेजेस एंड AC ऑपरेटिंग वोल्टेजेस को आप बड़ी क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद लार्ज कैपेसिटर्स आर शॉर्ट सर्किट्स एंड लार्ज इंडक्टर्स आर ओपन सर्किट्स इन दिस सर्किट। तीसरे में स्टेप में हम क्या करते हैं कि चूँकि हमने पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे बिल्कुल पहला सर्किट जो है वो हमारा पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बेस को बायस कर रहा है यूटिलाइजिंग द पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट फॉर द इनपुट लूप। तो उसमें हम दो पैरेलल रजिस्टर R1 एंड R2 की टोटल सम थेवेनिन सर्किट से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव डन इन वन ऑफ द अर्लियर लेक्चर्स। उसके बाद हम ट्रांजिस्टर को स्मॉल सिग्नल मॉडल से रिप्लेस करते हैं, विच इज़ योर स्टेप नंबर 4। तो आप देखते जाएं कि कैसे बतदरीज आपका सर्किट जो है वो सिंपल होता जा रहा है, और हम AC को और इनपुट को और आउटपुट को टोटली रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये अब स्टेप 5 में अब आप देखेंगे कि हमने सर्किट को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया है, और इस तरह सिंप्लीफाई करके हम ट्रांजिस्टर को के मुख्तलिफ फ़ीचर्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो बाय द वे इस फाइनल सर्किट को, जिसको हम एज अ पाई मॉडल या T सर्किट भी बाज़ दफ़ा एम्पलीफायर सर्किट्स में एज अ पाई और T मॉडल भी लेबल देते हैं। तो अब आप सिंगल ग्लांस में दोबारा इस स्लाइड को गौर से डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। तो टॉप पे हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एम्पलीफायर सर्किट है
जिसमें आपके कपलिंग कैपेसिटर्स भी लगे हुए हैं इनपुट एंड आउटपुट सर्किट में, और आपका एक बाईपास इमिटर पर कैपेसिटर भी लगा हुआ है, क्योंकि इमिटर इस सर्किट में ग्राउंड किया हुआ है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, क्योंकि मैंने 5 स्टेप की आपको लिस्ट दी है और 5 ही मैंने आपको सर्किट उस मुनासबत से दिखाए हैं। तो ये एक समरी है ऑफ द इंटायर डिज़ाइनिंग ऑफ द इंटायर एम्पलीफायर सर्किट। एक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड एम्पलीफायर सर्किट को हम लेके चले और उसको हमने एंड में जाके एक इक्विवेलेंट सर्किट में रिड्यूस कर दिया, पाई मॉडल सर्किट में रिड्यूस कर दिया। तो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट चूज करने के बाद और उस पर एक स्मॉल एसी सिग्नल सुपर इम्पोज करने के बाद हमने एक एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया, जिसमें हमने डीसी वोल्टेजेस को ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दिया और डीसी करंट्स को हमने ओपन सर्किट के तौर पे रहने दिया। दैट इज़ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में हमने जो रेजिस्टेंसेस R1 थी उनको रिप्लेस किया विद दी थेवेनिन रेजिस्टेंस, और इसी तरह आउटपुट सर्किट में हमने रिप्लेस किया। तो स्टेप 4 में अब हमने ट्रांजिस्टर को स्मॉल सिग्नल मॉडल से रिप्लेस किया, कि जहां आपको इनपुट एसी और आउटपुट को आपने रिप्लेस कर दिया एसी को विद द रेस्ट ऑफ द सर्किट, और फाइनली आपने आउटपुट को भी रिप्लेस करके 3 रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टर से इक्विवेलेंट कर दिया। एंड दैट इज़ आवर फाइनल या construction या designing of a pi model starting from a very comprehensive and detailed amplifier circuit. अब मैं पिछले 2 लेक्चर्स को समराइज कर लेती हूँ कि जहाँ हमने ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे स्टडी किया। तो स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन में द एसी बेस वोल्टेज हैज़ अ डीसी कंपोनेंट एंड एसी कंपोनेंट, कि आपकी टोटल बेस पर जो वोल्टेज जा रही है ट्रांजिस्टर को बायस करने के लिए फॉर द ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, 2 कंपोनेंट्स हैं, एक डीसी कंपोनेंट है और एक एसी कंपोनेंट है। These set up DC and AC components of emitter current. One way to avoid excessive distortion is to use small signal operation. This means keeping the peak-to-peak AC emitter current less than 1/10 of the DC emitter current. तो small signal की definition मैंने पहले ही आपको दी थी। तो एक thumb of the rule ये है कि आप peak-to-peak जो आपकी emitter current जो है या जो भी आपकी input current है, आप उसको 1/10 DC बेस करंट या DC emitter करंट से कम रखें। Then AC beta, the AC beta of a transistor is defined as the AC collector current divided by the AC base current. The values of the AC beta usually differ only slightly from the values of the DC beta. अगर आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराएं, और ये हमने पहले भी बताया है कि चूँकि हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ लॉजिकल दैट योर इनपुट शुड बी स्मॉल सो दैट with respect to relative to the output, your input should be small so that you can get a large signal by injecting a small signal. अब आप हमारा सिग्नल जैसा हमने स्टेप नंबर 1 में बताया, हमारा सिग्नल जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, अ स्मॉल एसी सिग्नल superimposed on a slightly large DC बेस सिग्नल। बेस में इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, जो कि हमें लेनी चाहिए, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में पॉइंट नंबर 2 में मैंने कहा कि हमारा जो बीटा है दैट इज़ डिफाइंड एज द गेन विच इज़ द रेशियो ऑफ द आउटपुट करंट टू द रेशियो ऑफ द इनपुट करंट। अब चूंकि आज के लेक्चर में एम्पलीफायर सर्किट्स में हमारा सिग्नल एसी है, अल्टरनेटिंग सिग्नल है, टाइम वेरिंग सिग्नल है, तो बीटा भी हमारा एसी डिफाइन होगा। तो एसी बीटा और डीसी बीटा में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि हमने क्यू पॉइंट को कंट्रोल किया हुआ है फ्रॉम डीसी पैरामीटर्स, जैसा कि हम कई बार जिक्र कर चुके हैं कि क्यू पॉइंट को डीसी वैल्यूज़ IC IB से हमें कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आपकी फिर जो एसी सिग्नल है वो अनडिस्टॉर्टेड रहे।
So we can use the same values of beta. अगर हमारे पास AC values available नहीं हैं तो किसी numerical calculation में अगर ज़रूरत पड़े तो हम DC values of beta को utilize कर सकते हैं. उसके बाद हम summarize करते हैं कि हमारी AC resistance of the emitter diode को हमने define किया और साथ में हमने ये भी जिक्र किया कि we can prove that the AC resistance of the emitter diode equals 25 milliampere जो कि millivolts जो कि simply आपकी thermal voltage के बराबर ये value है. Then we defined the two transistor models. As far as AC signals are concerned, a transistor can be replaced by either of the two equivalent circuits, the pi model or the T model. The pi model indicates that the input impedance of the base is simply beta times the resistance of the emitter terminal. तो ये finally हमने pi model को बिल्कुल end में जाके discuss किया था. उसके बाद हमने analyze transistor के analyze करने की बात की थी कि the simplest way to analyze an amplifier is to split the analysis into two parts, a DC analysis and an AC analysis. In the DC analysis, the capacitors are open, and in the AC analysis, the capacitors are shortened and the DC supply points are AC grounds. And finally, we say that the AC quantities on the data sheets are normally given. If not, then beta, as we just mentioned, the AC beta more or less is the same as the DC beta, and if you do not find the AC beta on the data sheets, we can approximate the DC beta sheets, which are DC beta values, which normally are given on the data sheets of a given transistor. So that brings me to the end of this lecture, and I do hope that you would find it interesting in the sense that we had tried to give a complete flavor of the designing of an AC amplifier circuit, in which we incorporated not only the AC signal superimposed on the DC value, but we also connected the capacitors, and we labeled them as coupling capacitors and bypass capacitors. Then we designed an equivalent circuits, DC equivalent circuits and AC equivalent circuits, and then in order to analyze the DC values and AC values of a transistor circuit, we reduced the circuit to a pi model, which is a two-part amplifier circuit. Thank you so much, and I shall see you in my next lecture with some more interesting examples, numerical problems and examples, because solving problems and solving exercises is the best way to analyze any circuit, whether it is a simple diode as a PN junction as a current device, or transistor as an amplifier circuit. So I look forward to seeing you again. Thank you so much, and Allah Hafiz.